Hello everyone, I'm Reema and you're watching Offside Opinions. And today I'm back with yet another IPL video. So, as you all know, round 3 of IPL is almost over. Except for Punjab Kings and Delhi Capitals, all other teams have played 3 matches each. अब इस पॉइंट पे आके काफी क्लियर हो रहा है कि कौन सी टीम्स अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी टीम्स स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है। तो आफ्टर yesterday's match, Royal Challengers Bangalore are no longer the table toppers. Now the table is being led by Punjab Kings, followed by Delhi Capitals, Royal Challengers Bangalore, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants, Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, and ultimately defending champions Kolkata Knight Riders. तो ये था पॉइंट्स टेबल। अब थोड़ा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे भी नजर डालते हैं और देख लेते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लिस्ट। तो ऑरेंज कैप लिस्ट इज बीइंग लेड बाय निकोलस पुरन, who has been such a solid performer for Lucknow Super Giants till now. Then it's Sai Sudarshan and Josh Butler, Suresh Iyer, Travis Head, Mitchell Marsh, Aniket Verma, Ruturaj Gaikwad, Ishan Kishan and Dhruv Jurel. And now coming to the purple cap list, it is being led by none other than Noor Ahmed, then followed by Mitchell Starc, who had his first fifer of his T20 career in the last match for Delhi. Then it's Josh Hazelwood, Sai Kishore, Shardul Thakur, Khalil Ahmed, and others, as you can see in the list. Alright, अब चलते हैं मैचेस की तरफ और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मैचेस। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, Mumbai Indians versus Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants versus Punjab Kings, and of course the last match, Royal Challengers Bangalore versus Gujarat Titans. Let's start with the latest match, RCB versus Gujarat Titans. So RCB had a solid start to the season, no doubt. But finally, कल उनका winning streak टूट गया और वो भी अपने home ground चिन्नास्वामी में आके. Now let's be honest, yesterday just was an RCB's day. पावर प्ले का फायदा वो उठा नहीं पाए, विकेट्स गिरते रहे और स्कोर बोर्ड प्रेशर बढ़ता गया. And that one player who caused a lot of problems for RCB during their batting was none other than Mohammad Siraj, who was one of their own for a long time till last season. अब अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, दैट वाज सम स्टेटमेंट फ्रॉम मोहम्मद सिराज. साई किशोर और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी काफी सॉलिड बॉलिंग करी एंड अल्टीमेटली गुजरात टाइटंस restricted RCB to just 169. चिन्नास्वामी जैसा ग्राउंड है तो ऑनेस्टली मुझे तो लगा था कि स्कोर 200 के आसपास होगा, बट एट वन पॉइंट इवन 150 looked difficult, isn't it? Thanks to that half century by Liam Livingstone and some quick runs from Jitesh Sharma and of course Tim David that helped RCB reach 169. और फिर गुजरात ने बहुत ही कंफर्टेबली वो रन चेस कंप्लीट किया. लास्ट सीजन साई सुदर्शन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था गुजरात के लिए और इस सीजन में भी वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. और जॉस बटलर तो जॉस बटलर है, एक बार अगर सेटल हो जाए ना गेम में तो सिंगल हैंडेडली टीम को मैच जिता सकते हैं वो. ही हैज दैट पोटेंशियल. मे बी राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट इज नाउ थिंकिंग दैट परहैप्स दे शुड नॉट हैव लेट हिम गो, इजंट इट? एनीवे, अब पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के बारे में बात करते हैं, जिसमें पंजाब किंग्स ने काफी कंफर्टेबली जीत हासिल की. एंड टू बी ऑनेस्ट, Punjab Kings are having the start to the season that they would have wanted. A complete team revamp during the auction and they are performing well, isn't it? लखनऊ के मैच में पहले तो उनके bowlers ने अपना काम किया. They did not let Mitchell Marsh and Nicholas Puran build a partnership because we all know that if these two get going, that means trouble for the opposition bowlers. उन्होंने लखनऊ को बहुत बड़ा टोटल बनाने दिया नहीं और फिर बहुत ही कंफर्टेबली पंजाब के बैटर्स ने वो टोटल चेस डाउन किया विद सम सॉलिड बैटिंग फ्रॉम प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर एंड नेहल वरेरा. एक बात बताऊं, केकेआर फैन हूं ना, तो अब जब मैं देख रही हूं कि इस सीजन में मिचेल स्टार्क, श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट, 3 की प्लेयर्स फ्रॉम आवर टाइटल विन लास्ट सीजन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मेक्स मी मिस देम इवन मोर देन आई ऑलरेडी डू. अब क्या ही करें, you just gotta live with it, isn't it? अब जब KKR की बात हो ही रही है, let's talk about the KKR versus Mumbai match. And I'm sure everyone,
every KKR fan like me is disappointed. I know winning and losing is part of the game, but जैसे हम हारे वो acceptable नहीं है. ना बैटिंग में इंटेंट था, ना bowling में aggression. Now to me it feels like Sunil Narine as an opener is not working like it used to before. At least till now, that is what I can see. So that is one thing that KKR really needs to figure out कि क्या करे. वो opening partnership बहुत important है. और last season में भी वो opening partnership was so crucial for us to win so many games. And also हमारे most expensive player ने अभी तक अपने price tag को justify किया नहीं. So that only means there's now more and more pressure building on him. Although there are arguments going on as to how his batting position is not really suitable for him. तो वो भी एक एरिया है जो केकेआर को थोड़ा सा फिगर आउट करना है कि क्या करे ताकि वी कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ वेंकटेश अय्यर. एंड आई कैन जस्ट होप दैट द टीम रीग्रुप्स, सिट्स टुगेदर, टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग. और आज का जो मैच है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, इस मैच में और अगले सारे मैचेस में वो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस देखने को मिले. रियली होपिंग फॉर दैट. नाउ कमिंग टू मुंबई, आफ्टर 2 losses, that dominant victory against KKR must really act as a confidence booster for them, isn't it? अब एक चीज मैंने नोटिस किया अबाउट मुंबई, आई एम श्योर सबने नोटिस किया होगा कि बुमराह तो नहीं खेल रहे हैं पर उनके जो यंग बॉलर्स हैं ना वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. पहले विघ्नेश पुथुर, फिर केकेआर के मैच में अश्विनी कुमार. सो दैट इज अ रियली पॉजिटिव थिंग फॉर मुंबई. बट दैट बीइंग सेड, आई स्टिल फील that in the absence of Bumrah and if Rohit Sharma does not get back in form, it can be problem for Mumbai going further in the tournament. तो देखते हैं क्या होता है. तो अभी बाकी रह गया बस एक मैच, वो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके मैच. अब उसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीत तो हासिल की, बट आई स्टिल से देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट दे नीड टू एड्रेस. जैसे वो बैटिंग कर रहे थे ना शुरू में, एक टाइम पे लगा था दैट अ 200 प्लस स्कोर इज पॉसिबल, लेकिन एंड तक वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाए. अब जोफ्रा आर्चर की बात करूं तो फाइनली एक अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला एंड राजस्थान रॉयल्स वुड बी होपिंग दैट ही कैरीज दैट फॉर्म, दैट मोमेंटम इन द अपकमिंग मैचेस. बट दैट बीइंग सेड, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट चेन्नई ऑलमोस्ट चेज डाउन द टोटल, इजंट इट? अब वो क्यों नहीं कर पाए उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैंने पहले भी बोला है और मैं फिर से बोलने वाली हूं, एंड दैट इज their team lacks marquee X factor finisher, जो कि किसी भी टाइम में आके, स्पेशली वो एंड ओवर्स में आके वो बड़े शॉट्स लगा पाए. अब आप एमएस धोनी से वो हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नो मैटर इन विच पोजीशन ही कम्स डाउन टू बैट. एंड दिस वन फैक्टर कैन एक्चुअली ट्रबल देम टू चेज और इवन पोस्ट बिग टोटल्स थ्रू आउट द सीजन. तो देखते हैं वो इस प्रॉब्लम को चेन्नई कैसे एड्रेस करते हैं. एनीवे, दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे. Let me know in the comment section what you feel about this new IPL season. Which team or which player has impressed you the most, and which team or which player has left you really disappointed. And if you have liked today's video, you know the drill. Please give a like. And if you have not yet subscribed to my channel Offside Opinions yet, please do it today. Thank you.